Good afternoon, students. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, so yesterday we have seen like the basics of website. When you are planning to create a website, what things you have to consider, like domain name, your website name, a number of things. We have seen what is internet, www, and which protocol is used when you are using or you want to access a web page. So HTTP or HTTPS is a protocol which is very important when you are want to access a web page. So I am not going to go in a detail what is HTTP because already you have studied this in your computer network. You know HTTP is a hypertext transfer protocol and mainly it is used to access the web pages on internet. Now next I have also explained the something yesterday like what is URL, where we have seen like whenever you're opening any web page. So very first thing which is coming is a protocol, that is name of protocol, either FTP, HTTP, then host name and then some other information. So URL is divided in three different parts and the long form of URL is Uniform Resource Locator. Now what is mean by website? So website is a collection of web pages. एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज हो सकते हैं. जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले snjb.org, so you are getting this first page. When I am just clicking on skip this page, okay, so this is another page. अब जैसे there are number of different web pages which are available. जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, okay, so here the starting name is same, snjb.org, only the next path is just changing. So number of web pages are there. So collection of web pages, when you are combining at one place, we call it as a website. And generally all these web pages, when you want to design any of the web page, suppose हम इसको क्या करते हैं, अभी राइट क्लिक करते हैं अगर इसका व्यू सोर्स पेज, जैसे मैंने कल दिखाया था. So whatever, if you see any of the website, it is starting with a HTML. जो भी basic design आपको करना है कोई भी website का, you require the knowledge of HTML. तो यहाँ पे जितने भी टैग्स आपको दिख रहे होंगे ऑल आर मैक्सिमम फ्रॉम HTML और जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट. यानी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है उसको यूज किया जाता है. एंड HTML इज नथिंग बट इट इज एन मार्कअप लैंग्वेज. नाउ व्हाई मार्कअप लैंग्वेज? अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जितने भी टैग्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने DBMS में कमांड्स पढ़े हैं, राइट? सो कमांड्स के बजाय यहाँ पे हर एक चीज को टैग्स होता है जो ट्रायंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट या एंड किया जाता है. एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट इन अ ट्रायंगुलर ब्रैकेट. सो वी कॉल इट एज अ मार्कअप लैंग्वेज. इसमें टैग्स यूज होते हैं. तो HTML हो गया, XML हो गया, ऑल दीज आर द मार्कअप लैंग्वेजेस. Now there are two main things which are coming when a website is coming. Like website में it always use a basic client server architecture. तो जब मैं बोल रही हूँ कि हम client server architecture use कर रहे हैं, okay, so in a client server architecture, so two things are there. One is your client and second is your server. तो यहाँ पे मैंने बोल दिया this is an client machine, this is an server machine. So generally client send a request to the server and server gives the reply to the client. So for this kind of architecture, what kind of program is required to be run on client side and what kind of like software you require on a server side? So generally client side में जब भी हमको कोई रिक्वेस्ट सेंड करना है सर्वर को या कोई भी वेब पेज आपको ओपन करना है, तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है? कहाँ से आप कोई भी वेब पेज ओपन करते हो? विच सॉफ्टवेयर यू रिक्वायर? Web browser. Yes. Please pardon. Hello, just give answer again. Actually, you are not audible, so I am not able to. Yes, it's a web browser. Very good. So when you are working with a client-side machine, you require the web browser. So this is a one kind of program or application which is running on
क्लाइंट साइड मशीन, यानी आपके मशीन पे आपको अगर कुछ भी वेबसाइट ओपन करना है तो आपको आपके मशीन पे लगता है वेब ब्राउजर. यू नो द नेम ऑफ वेब ब्राउजर, राइट? You know that then Internet Explorer is there, like Google Chrome is there, then Firefox is there, Mozilla is there. तो बहुत सारे वेब ब्राउजर्स जो है वो अवेलेबल है. सो लाइकवाइज अगर आपका मशीन क्लाइंट के बजाय एज ए सर्वर का काम कर रहा है, so for a server machine, the program which is required is called as the web server. तो सर्वर साइड में हमेशा आपको जो प्रोग्राम या एप्लीकेशन लगेगा दैट इज एन वेब सर्वर एप्लीकेशन. वेब सर्वर एप्लीकेशन के बगैर आपके कोई भी सर्वर साइड के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है प्रैक्टिकल जो है रन नहीं होते. सो डू यू नो एनी द नेम ऑफ द वेब सर्वर्स? एनीवन? Tomcat. Very good. Tomcat. Tomcat is given by which organization? It is a product of which organization? Tomcat के आगे हमेशा हम क्या यूज करते हैं? Apache Tomcat. So Apache is an organization who has developed the Tomcat. So apart from Tomcat, any other do you know? This is an like free source, freeware available Tomcat. इसके अलावा और कौन से वेब सर्वर है जो आपको पता है? XAMPP. XAMPP, good. और Node. yes, Node. okay, actually you are not audible, इसके लिए मेरे को नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो. Okay, so there are different web servers which are available. तो सबसे फेमस जो हम लोगों को पता है या काफी लोग यूज करते हैं that is a Tomcat which is a product of Apache. After Tomcat, the second is IIS server. Okay, now this is a product of Microsoft. तो ये सिर्फ खाली चलता है इसके लिए विंडोज पे. इफ यू वांट टू यूज दिस ऑन लिनक्स और उबंटू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय लाइक दिस IIS वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. तो सिर्फ विंडोज के लिए इसको यूज किया जाता है. टॉमकैट इज अ फ्रीवेयर, यू कैन यूज इट इन अ लिनक्स, उबंटू, विंडोज, एनी वर्जन. तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. इसके अलावा बहुत सारे लाइक ग्लासफिश इज देयर which is also used by many of the people nowadays. Okay, XAMPP is there, but XAMPP is it's a combination of number of things. जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि XAMPP, okay, so XAMPP के अंदर बहुत सारी चीजें आती है. A is Apache Tomcat. तो ये खुद के अंदर ऑटोमेटिक क्या करता है? Tomcat को डाउनलोड कर देता है आपके लिए. Then M is MySQL, P is PHP. तो XAMPP में जब आपको ऐसा कोई वेबसाइट बनाना है जिसमें आपको बैकएंड में MySQL चाहिए, फ्रंट एंड में PHP चाहिए और दोनों को कंबाइन करने के लिए, बिकॉज PHP इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज, तो PHP और MySQL ये प्रोग्राम रन करने के लिए अगर आपको सर्वर साइड का कोई लाइक वेब सर्वर चाहिए और Apache Tomcat चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग दिस 3 different application and making number of configuration on your machine, so they have combined all these things in a one package, that is a XAMPP. XAMPP डाउनलोड करो, ऑटोमेटिक MySQL आ जाएगा, PHP आ जाएगा, Apache डाउनलोड हो जाएगा और इन सबको लगने वाले जितने भी कॉन्फ़िगरेशन या ऑटोमेटिक वो उसके कंट्रोल पैनल पे आपको प्रोवाइड करता है. Now, yeah. So we have seen like if you are working on a website and if you are working on a server side language, so you require a web server. So here web server are number of example we have seen like Apache, IIS and Tomcat. If you are working on a client side client machine, you require a web browser to open any of the web page or website. And number of examples already you know you are using this on your machine or laptop or on your mobile. Then next which is coming is a ISP. Okay, so anyone knows what is mean by ISP? Internet Service Provider.
like Airtel, Jio. राइट, लाइक एयरटेल जियो। तो आपके मशीन में देखो, आपके मोबाइल ले लो या फिर आप लैपटॉप ले लो, तो जब आपको इंटरनेट कनेक्शन लगता है, यू टेक अ प्लान ऑफ इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम एनी ऑफ द वेंडर्स, तो वो वेंडर्स को इसमें बोला जाता है आईएसपी, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बहुत सारे, बीएसएनएल इज देयर, रिलायंस जियो इज देयर, एयरटेल इज देयर, तो नंबर ऑफ आईएसपी प्रोवाइडर्स आर देयर। तो जैसे अगर आप किसी भी, जैसे चांदवड़ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑफिस है जहाँ पे आपको बीएसएनएल का बोलो या रिलायंस का बोलो, वहां पे राउटर दिखेगा। सो फॉर एवरी लोकेशन दिस सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड यू अ राउटर्स, और जिसके थ्रू आपका डेटा लाइक एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए यूज होता है। बिकॉज आप एग्जांपल लो, आप आपके घर पे मशीन में, हमने लैपटॉप लिया, आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया है, आपके पास राउटर थोड़ी होता है, और हमको तो पता है विदाउट राउटर वी कैन नॉट सेंड द डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। So instead of router to be maintained by each and individual, this service provider kept this routers at one of the location in a particular area. So where the all request, all data from the client is received by that router and goes at a like next level. तो ये बहुत सारे examples है यहाँ पे क्या होता है ISP provider, यानी these are some basics that you should know. अब हम जाते हैं कि what are the different technologies, मतलब ऐसे कौन से लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज है जो हम बोल रहे हैं कि मैं कब से बात कर रही हूँ, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड या एडवांस टेक्नोलॉजी होते हैं, तो कौन से ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका WTL का जब भी ओरल होता है। दिस इज अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल वेयर दे आस्क, लाइक आप मोबाइल पे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो, याद रखो, where they generally ask like what are the different technologies which are available or coming at a client side or server side. तो क्लाइंट साइड में हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज है दैट इज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, VBScript, XHTML, DHTML, WML, AJAX, Flash, ये सब आते हैं आपके क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में। देन नेक्स्ट इज, मैं ये पूरा डिटेल में बताऊंगी कि क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड यानी क्या होता है। जैसे हम सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट पे जाएंगे, यू विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स। जब मैं बोली सर्वर साइड टेक्नोलॉजी लाइक ASP, PHP, Perl, JSP, Servlets, ASP.NET, like MySQL, all these are working at a server side. तो इसके लिए हम इसको सर्वर साइड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा देयर आर सम मोर एडवांस टेक्नोलॉजी व्हिच आर लाइक यूज, दे कैन बी अ वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज या फिर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी जो आपको लाइक डेटा ट्रांसफर के लिए या कुछ रेडीमेड DLL के लिए यूज होती है, लाइक XML, XSLT, RSS, XPath, Ruby on Rails, some frameworks, REST and so. तो आपके टेक्नोलॉजीज जो इसको ऐसे 3 अलग अलग पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। नाउ हाउ टू चूज अ टेक्नोलॉजी, जब आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो और इतने सारे टेक्नोलॉजीज के नाम है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो कौन सा टेक्नोलॉजी में आपने आपकी वेबसाइट बनाना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए। सो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। एग्जाम्पल लो कि आपको जैसे अभी हमने snjb.org की वेबसाइट ओपन की है। ओके, अभी जैसे मैंने बोला कि अब ये वेबसाइट है, यहाँ पे क्या है, दिस इज ओनली सम इमेजेस आर देयर। ओके, यहाँ पे कुछ टेबल है जिसको कुछ लिंक्स दिया है, अगेन दीज आर सम यूजफुल लिंक एंड सम इंफॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पे सपोज मैंने क्लिक किया, अगेन यू विल फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन, सम PDFs विच आर अवेलेबल। ओके, वापस अगर हमने यहाँ पे कहीं पे अगर क्लिक किया, so this is all only a theoretical information available। यहाँ पे हम यूजर से कुछ डेटा ले ही नहीं रहे, यूजर को हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन या फिर इमेज या फिर टेबल। तो जहाँ पे सिर्फ आपको लग रहा है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन हमको यूजर को प्रोवाइड करनी है, लेकिन यूजर से रिस्पॉन्स नहीं लेना है कुछ भी, only the information you have to provide to the user either in the form of text, labels, menus, images, forms, likewise। तो सिर्फ सिंपल बेसिक HTML एंड CSS को यूज करके या फिर बूटस्ट्रैप को यूज करके आप आपकी वेबसाइट बना सकते हो। सो ऑल दीज आर द क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। क्लाइंट साइड मतलब जिसमें क्लाइंट से कुछ भी डेटा सर्वर पे आ ही नहीं रहा है। सर्वर पे कब आता है कि जब जैसे अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट में अगर कोई फीडबैक का फॉर्म होगा, तो अगेन हियर इट इज ओनली द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल। लेकिन काफी बार ऐसे कुछ वेबसाइट होते हैं जहाँ पे यूजर का कुछ रेटिंग्स लिए जाते हैं,
उसके लाइक स्टार्स, उसको कैसा लगा वो ऐप या कैसी लगी वो वेबसाइट, उनका फीडबैक कलेक्ट किया जाता है या फिर उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. सो वेयर सम इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम क्लाइंट साइड टू द सर्वर. तो जब आपको क्लाइंट का भी कुछ डेटा चाहिए लेकिन वो स्टोर हो रहा है आपके सर्वर पे, अगर ऐसा कुछ है तो दैट टाइम यू रिक्वायर द बोथ द थिंग. HTML भी लगेगा, CSS भी लगेगा और सर्वर साइड की कोई टेक्नोलॉजी लगेगी, either PHP, JSP. Depend on in which language you are good. If you are very good in a Java, like basic Java, you have to go with a JSP servlet likewise. Otherwise, you can go with a PHP and you can add some flavor of Node.js, etc. So depend on like क्या आपको बनाना है उसके ऊपर डिपेंड है. मतलब सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट इट इज इट अ स्टैटिक और डायनामिक. कोई मुझे बताएगा लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट? क्या क्या डिफरेंस है स्टैटिक एंड डायनामिक के कीवर्ड में? एनीबॉडी नोज? मैम स्टैटिक मतलब कांस्टेंट. स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट. जैसे मैंने बोला कि अभी SNJP की ये इंफॉर्मेशन है, इट्स नॉट इन आवर हैंड टू चेंज दिस डेटा. जैसा सर्वर से आ रहा है हमको सिर्फ देखने को मिल रहा है, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. दिस इज स्टैटिक. ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक वेबसाइट जिसमें सिर्फ कंटेंट हम शो कर रहे हैं. एंड डायनामिक वेबसाइट यानी जस्ट डोंट पुट एनीथिंग इन द चैट विंडो. मैं आपको एक गूगल की लिंक शेयर करूंगी थोड़ी देर के बाद, उसमें आपको आपका अटेंडेंस डालना रहेगा. आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस चैट अटेंडेंस, सो डोंट पुट एनीथिंग इन द चैट विंडो. आपके कुछ क्वेश्चन है तो ही आप उसको पुट करो. मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करूंगी, प्लस हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, उससे ही आपका अटेंडेंस लेने वाले हैं. सो दिस इज अ स्टैटिक वेबसाइट. अभी डायनामिक वेबसाइट यानी क्या? जैसे एग्जांपल हो, यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज आई हैव यूज्ड लाइक जीमेल ओपन किया. अभी यहाँ पे सपोज मैंने इसको भी साइन आउट कर देती हूँ. एंड नाउ आई एम लाइक गिविंग द जीमेल वेबसाइट. ओके, अब यहाँ पे अगर मुझे ये स्टैटिक है या डायनामिक है ये वेबसाइट, आप बोल सकते हो क्या? अब ये जो वेब पेज आ रहा है, इज इट अ स्टैटिक और डायनामिक? स्टैटिक. डिजाइन स्टैटिक है लेकिन बैकग्राउंड में इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है? डायनामिक. व्हाई डायनामिक? जैसे मैंने अगर पासवर्ड गलत डाल दिया, ओके मैंने गलत डाल दिया, व्हाट विल हैपन? इट इज गिविंग मी समथिंग इंफॉर्मेशन. मतलब ये वेबसाइट मुझे क्या डेटा प्रोवाइड करेगा? इट इज डिपेंड ऑन व्हाट इनपुट आई एम गिविंग टू दैट वेबसाइट. इस टेक्स्ट बॉक्स में जैसा इनपुट मैं दूंगी वैसा मुझे आउटपुट मिल रहा है. अगर मैंने रॉन्ग वेबसाइट का एड्रेस डाला या रॉन्ग पासवर्ड डाला है, इट इज गोइंग टू गिव मी द लाइक एरर मैसेज. अगर मैंने प्रॉपर पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया, इट इज गोइंग टू गो इन अ नेक्स्ट पेज. सेम योर गूगल. देखो ये डिजाइन तो स्टैटिक है लेकिन इसका वर्किंग क्या है बैकग्राउंड में? स्टैटिक है या डायनामिक है गूगल? डायनामिक. डायनामिक है ना, क्योंकि इसका जो आउटपुट आने वाला है नेक्स्ट, ये बटन पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे गूगल सर्च पे जब क्लिक करोगे तो क्या हर एक का आउटपुट सेम आएगा? अगर 10 लोगों ने इसको ओपन किया है, डज द आउटपुट ऑफ आफ्टर क्लिकिंग दिस बटन, did they get the same output? No. This is depend on totally what input user has given in this text box. अगर मैंने यहाँ पे कुछ HTML दिया है, okay, so I will get so here the output is totally depend on the input. यहाँ पे मैंने कुछ चेंज कर दिया, output will be changed. So this is called as the dynamic website. तो आपको कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है, ये डिपेंड होता है कि आपके कंटेंट कैसे है. स्टैटिक कंटेंट है, डायनामिक कंटेंट है, हु इज योर ऑडियंस?
आपको वो ऑडियंस को क्या डेटा दिखाना है, आपको वीडियो भी बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, दे आर शोइंग इमेजेस लाइक वीडियोस एंड नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सो हु इज योर ऑडियंस, हु विल मॉडिफाई योर कंटेंट. आपके क्लाइंट को कुछ राइट्स है क्या कि वो आपके कंटेंट को मॉडिफाई कर सकता है. What are your future plans for your website? Availability of technology, जो आप टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हो वो सच में अवेलेबल है, आउटडेटेड है, या अभी तक मार्केट में इतनी सबके पास नहीं. जैसे HTML5 जब पहली बार आया था स्टार्टिंग में, नाउ इट्स अ कॉमन HTML5, एवरी ब्राउजर इज ऑलमोस्ट सपोर्टिंग द HTML5. लेकिन बिफोर सम इयर्स बैक लाइक इन 2013-14 जब HTML5 ये लेटेस्ट आया था, तो जो ब्राउजर थे, जो यूजर यूज कर रहे थे, वो ब्राउजर सपोर्टिव ही नहीं थे HTML5 को. तो वैसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो सॉफ्टवेयर्स जो लोग यूज करने वाले आपकी वेबसाइट, वहां तक वो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है क्या. So availability of technology, your previous experience, portability and data sharing. So number of things you have to ask a question before starting your website. What is your budget? What kind of is it required database or not? जैसे अगर मैंने बोला कि अभी Gmail है, ओके, इसके लिए डेटाबेस बैकग्राउंड में रिक्वायर्ड है या नहीं है. Does it require database or not? Yes, ma'am. Database लगेगा ना, because where in database your username and password has been stored, where whenever you are putting your username and password it is get checked by at that database. Again आपके जितने भी इनबॉक्स में जो डेटा है या सेंड बॉक्स में डेटा, ये कहीं ना कहीं स्टोर है सर्वर साइड में. क्या ये आपके मशीन पे स्टोर है क्या? Is the inbox data of your Gmail is stored on your machine or it is stored on the server? server. Right, it is stored on server. तो इसका मतलब आपको सर्वर साइड की टेक्नोलॉजी लगने वाली है, सिर्फ क्लाइंट साइड की डिजाइनिंग से नहीं चलेगा, क्योंकि जो डेटाबेस है ये आपको डिजाइन करना है. डेटाबेस ये क्लाइंट के मशीन पे नहीं होगा, ये एक लोकेशन पे होगा. 1000 लोग भी एट ए टाइम अगर जीमेल ओपन करते हैं तो सबको डेटा वो एक सर्वर प्रोवाइड करने वाला है. सो एट द बैक एंड यू रिक्वायर डेटाबेस, यू रिक्वायर सम सर्वर साइड टेक्नोलॉजी जिसमें आपके यूजर नेम पासवर्ड चेक किए जाते हैं, इंक्रिप्शन होता है. सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. So I hope you have understood, like whenever you are designing any of the website, what things you have to ask to yourself, and then you have to finalize which technology you are going to work. Okay, but कोई भी website design करो, HTML is a basic thing which everybody required, क्योंकि design जो है website का, designing के लिए HTML लगना ही लगना है. आप PHP use कर लो, आप JSP, Servlet, आप कुछ भी use करो, आप XML, anything you use, but you require basically HTML whenever you want to design a website. So HTML stands for hypertext markup language. अब इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग है. फर्स्ट इज अ hypertext. सो hypertext का मीनिंग क्या होता है कि जब किसी चीज पे कुछ चीज लिंक्ड होता है वेबसाइट पे, सो हियर वी नो लाइक कि अगर मैं इस चीज पे क्लिक करती हूँ, ओके, सो दिस इज डिपार्टमेंट. ये देखो यहाँ पे जैसे मेरा कर्सर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ लेकिन इसको क्लिक नहीं कर सकती. आई कैन ओनली सिलेक्ट दिस टेक्स्ट, बट व्हेनेवर आई एम गोइंग ऑन दिस टेक्स्ट तो आपके कर्सर जो है यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है. दैट मीन्स इट इंडिकेट्स यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड it get open at some other location. मतलब कोई नया वेब पेज क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज द हाइपर टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट है जिसको हमने कुछ तो वेबसाइट जो है ये लिंक किया हुआ है, कोई वेब पेज लिंक किया है, विच इज कॉल्ड एज द हाइपर टेक्स्ट. नेक्स्ट इज मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप क्यों, क्योंकि बैकअप में इसका जो डिजाइन है उसके लिए आपको टैग्स लगते हैं. इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज. So it is an hypertext markup language. This is the language in which we write web pages for any website, and this is the subset. This is the subset of standard generalized markup language, that is SGML for electronic publishing. मतलब HTML ये नाम आने के पहले इसको पहले बोला जाता था SGML, that is standard generalized markup language
for electronic publishing, the specific standard used for World Wide Web. तो हाइपरलिंक क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, सो थ्योरेटिकली वे में यहाँ पे दिखा है. नाउ हाइपरलिंकिंग ये सिर्फ टेक्स्ट को होता है या और क्या क्या चीजों को हम हाइपरलिंकिंग कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे टेक्स्ट को हमने हाइपरलिंकिंग किया है, और किस पे कर सकते हैं? इमेज पे हाइपरलिंकिंग हो सकता है क्या? कभी ऐसा देखा है कि कोई इमेज है और उस पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड में कुछ चीज ओपन हो गया? होता है ऐसा? Yes, ma'am. Right, means you can provide the hyperlinking not only to the text but you can provide it to the images, to the buttons. So बहुत सारे चीजों में आप hypertext provide कर सकते हो. So it includes buttons, icons, image, maps and some clickable text link. इन सबको आप hyperlink जो है hypertext जो है वो provide कर सकते हो. Okay, yesterday we already talk about domain names and extension types. So domain name हमने already देखे थे .com, .name, .org, like country related some domains, .biz. तो ये भी बहुत सारे different domains are available and some extension types are available. Like हमने जैसे बोला कि country extensions available होते हैं, तो ये proper हर country के लिए कुछ domain के लिए extension दिए जाते हैं. जैसे सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि google.in, तो हम क्या बोलते हैं google.co.in. तो दो डोमेन हो गए. सो एक डोमेन का ये एक्सटेंशन होता है, नेक्स्ट एक्सटेंशन, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन टाइप्स. नाउ व्हेनेवर you want to design a website, there are some basic steps you have to follow. वेरी फर्स्ट इज, सपोज हम लोगों ने कोई एक एग्जांपल दो, कोई एक वेबसाइट जो लगता है आपको कि बनानी है किसी के कुछ दिमाग में, कह रहे इसका वेबसाइट मैं प्लान करूंगा या करूंगी बनाने के लिए, या किसी का कोई अगर घर पे कोई बड़ा बिजनेस है या कुछ फार्मिंग है, कुछ भी बोलो कि आपको लगता है इसका हमको वेबसाइट बनाना है. गिव वन लाइक एग्जाम्पल, तो हम उस एग्जाम्पल को लेके मैं आपको ये स्टेप्स एक्सप्लेन कर सकती हूँ. यस, एनीवन? स्वाति, रोल नंबर 12, स्वाति पवार. यस मैम. आपको अगर बोला कि वेबसाइट बनाना है तो क्या आपका लाइक एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, जिस पे आप वेबसाइट बनाने के लिए आपको अच्छा लगेगा, यू विल लाइक टू क्रिएट इट? व्हाट आर योर हॉबीज? रीडिंग बुक्स मैम. ओके, सपोज एग्जांपल लो कि रीडिंग बुक्स. तो अगर हमने सोचा कि हमको बुक्स के रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना है, आपको पता है ना, एवरीबडी यू आर यूजिंग अमेज़न. अमेज़न अभी आप शॉपिंग के लिए यूज करते हैं. सबसे पहले अमेज़न आया था, वो किस चीज के लिए आया था? इट्स ओनली यूज्ड फॉर बुक्स. जिसको ऑनलाइन बुक्स परचेस करने थे तो अमेज़न मेनली ओनली फॉर बुक्स. अब वो आगे बहुत सारी चीजों में चला गया. तो सबसे पहला बेसिक वेबसाइट उन्होंने जो बनाया था वो बुक्स के लिए था. ओके, तो हमने सबसे पहले सोचा कि चलो हमको बुक्स के रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना है जिसपे किसी को भी अगर ऑनलाइन बुक्स परचेस करना है तो वो कर सकता है. तो उसके लिए आपको क्या, what things you require on your website? You require all the list of like books. कोई भी बुक्स को सर्च कर सकता है. बुक सर्च बाय like its title, by author or by like area of interest, like sports डाल दिया तो सिर्फ स्पोर्ट्स के रिलेटेड बुक्स आने चाहिए. अगर साइकोलॉजी डाल दिया तो साइकोलॉजी के रिलेटेड बुक्स आने चाहिए. सो यू वांट दैट सर्चिंग शुड बी डिपेंड ऑन द डिफरेंट कैटेगरी एंड so all the list of books should be available on your website. Apart from that, the price of that book, number of copies which are available, and if anybody want to purchase online, so you want to take its address, its banking details and like थर्ड पार्टी से आपको उसका पेमेंट लेके और उसको कुरियर करने का, ये सब चीजें उसमें लगने वाली है. तो ये आपने सोच लिया कि ये वेबसाइट बनाना है, सो यू हैव टू गैदर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जितने बुक्स है जो आप आपके इस पे वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो या फिर उसको सोल्ड आउट करना चाहते हो.
तो आपको सब उसका इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना पड़ेगा. ओके, देन सेकंड यू हैव टू डू द प्लानिंग मतलब फर्स्ट वेब पेज कैसा होना चाहिए, कहाँ पे बटन होना चाहिए, किस पे क्लिक करने के बाद क्या पेज ओपन होना चाहिए. सो ऑल द प्लानिंग, क्या नाम होना चाहिए आपके वेबसाइट का, उसका डोमेन क्या होना चाहिए, आप ये कितने साल के लिए बनाना चाहते हो, कितना स्पेस लगेगा आपको, डेटाबेस लगेगा या नहीं लगेगा. everything, every planning you have to be in your mind. According to your planning you have to design your website. ओके, डिजाइनिंग मतलब हम पहले बोलते हैं उसको पेपर वर्क करना, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक पेपर वर्क करेंगे. डिजाइन कैसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, कितने वेब पेजेस लगेंगे, एवरीथिंग. आफ्टर डिजाइनिंग यू विल स्टार्ट एक्चुअली डेवलपिंग दैट डिजाइनिंग. ओके, जो भी डिजाइन डिसाइड किया है आप सोचोगे कि कौन सा टेक्नोलॉजी उसको लगने वाला है. आफ्टर डिसाइडिंग अ टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग टू लाइक स्टार्ट डेवलपिंग योर वेबसाइट. आफ्टर डेवलपिंग यू हैव टू टेस्ट इट. कोई भी चीज जब डेवलप होती है तो बिफोर गिविंग इट टू द client to actually use, you have to test it multiple times by giving some other like all kind of input कि सब इनपुट प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ऑल फिल्टर वर्क कर रहे हैं कि नहीं. अगर किसी ने परचेस का ऑर्डर डाला है तो सच्ची में उसको वो अगर क्वांटिटी 5 डाली, कोई बुक डाला तो बराबर प्राइस कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं, डेटाबेस में वो डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं. सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू टेस्ट, एंड व्हेन द टेस्टिंग इज परफेक्ट देन यू आर एक्चुअली डिलीवर. मतलब डिप्लॉयमेंट हम बोलते हैं. डिप्लॉयमेंट मतलब जिसमें एक्चुअली सब क्लाइंट के लिए वो वेबसाइट क्या हो गई है, ओपन हो गई. यू हैव लॉन्च योर वेबसाइट, दैट इज अ डिलीवर. एंड आफ्टर डिलीवर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर और इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इन अ वेबसाइट डेवलपमेंट इज अ मेंटेनेंस. क्योंकि एक बार आपने बना दिया और उसको डिलीवर कर दिया, दैट इज नॉट द एंड. एवरी 6 month 3 month आफ्टर ईयर यू हैव टू मेंटेन इट. मीन्स आपको उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा. जैसे कुछ नया बुक आया, यू हैव टू ऐड. sometime you may require to change the design of your website according to the feedback from user, और like उसको यूजर को इजी है कि नहीं उसको यूज करना. सो दीज आर द डिफरेंट लाइक डिजाइनिंग स्टेप्स व्हेन यू आर वांट टू डिजाइन द वेबसाइट. अब इसमें हमने देखा कि एक प्लानिंग करके एक फेज आता है. सो इन अ प्लानिंग व्हाट थिंग्स यू हैव टू प्लान. सबसे पहले डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस. आप किड्स के लिए बना रहे हो, ओल्ड एज के लिए बना रहे हो, यंग के लिए बना रहे हो, सिर्फ गर्ल्स के लिए बना रहे हो, बॉयज के लिए बना रहे हो, या फिर हर एक जन उसको यूज कर सकता है, एनीबडी. सो हु इज योर टारगेट. क्योंकि अगर आप किड्स के लिए अगर बना रहे हो कुछ, जैसे उसके रिलेटेड कुछ राइम्स हो गए या सिर्फ बुक्स फॉर किड्स अगर आप बना रहे हो तो आपका कलर कॉम्बिनेशन एकदम फंकी होगा. ओके, अगर आप ओल्ड एज के लिए बनाओगे तो आपके बैकग्राउंड का जो कलर कॉम्बिनेशन है वेबसाइट का बहुत सॉफ्ट होगा. सो डिपेंड ऑन योर ऑडियंस, यू हैव टू यूज योर कलर कॉम्बिनेशंस. द नेक्स्ट इज सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है वेबसाइट बनाने के पीछे, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव. सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहे हो या फिर आपको इसमें से अर्निंग भी चाहिए है. सो नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर लाइक डिजाइन वेयर दे एक्चुअली अर्न नंबर ऑफ थिंग्स. या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका कोई बिजनेस है उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट तक पहुंचानी, इसके लिए आपको चाहिए है. द नेक्स्ट इज क्रिएट अ साइट मैप. साइट मैप मतलब फर्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद, ये बटन पे क्लिक करने के बाद कौन सा वेब पेज ओपन होगा, इस पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाएगा. सो पूरा एक रोड मैप, साइट मैप उसमें क्रिएट किया जाता है. देन एस्टिमेट जो है मतलब बजट जो है वो फाइंड आउट करो. ओके, बजट को सेट करो एंड डिफाइन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इफ यू आर नॉट ओनली द वन हु इज डिजाइनिंग दिस वेबसाइट, अगर आपके टीम में 7 से 8 लोग हैं तो हर एक का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा. कौन डेटाबेस डिजाइनर होगा, कौन PHP का पेजेस डिजाइन करेगा, GUI कौन डिजाइन करेगा, क्वालिटी चेकिंग कौन करेगा, डिप्लॉयमेंट का पूरा या बजट के पूरा प्लानिंग कौन करेगा. सो जस्ट डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर. But still, whenever you are designing a website, some issues that can arise, like very first is simplicity. तो simplicity मतलब काफी लेस एनिमेशन, टेक्स्ट एंड विजुअल इफेक्ट डालो अगर आपकी वेबसाइट आपको बहुत सिंपल बनानी है तो. The next is identify the web apps through design. देन कंसिस्टेंसी मतलब यूनिफॉर्मिटी, स्टाइल एंड कलर एंड एक्सेट्रा. जैसे अगर यहाँ पे अगर हमारा कॉलेज का वेबसाइट है, अगर आप देखो
तो हर एक मेनू जो है उसका फॉन्ट साइज सेम है। अगर सब कैपिटल में है तो हर एक चीज कैपिटल में ही लिया हुआ है। अगर हम लोगों ने जैसे एग्जाम्पल, अगर हमने इसमें किसी एक इसको क्लिक किया, ओके, एंड इन दैट सपोज वी हैव क्रिएट, जैसे अगर यहाँ पे जाओगे, कोई भी इस पे जाओगे तो जो सब मेनू आ रहा है, तो सब मेनू के लिए जो भी लाइक सीक्वेंस है, द सीक्वेंस इज वेरी सिमिलर। अगर हमने सपोज कंप्यूटर इंजीनियरिंग को क्लिक किया, so the color combination they have used in whole the website is only blue and black, blue and black। कहीं पर भी ऐसा ये नहीं किया है कि टेक्स्ट के लिए उन्होंने कोई डिफरेंट कलर यूज किया। एवरीवेयर इफ यू जस्ट क्लिक ऑन योर वेबसाइट यू विल फाइंड दैट दे हैव यूज्ड ओनली द आइदर ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन, और बहुत सारी चीजें क्या है, सिमिलर है। एंड कुछ अगर इमेजेस या टूल्स देने हैं, या यहाँ पे भी देखो आप, इफ दे हैव यूज्ड दिस टेबल, अगेन ब्लू कलर इज दे हैव यूज्ड। सो यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए आपके कितने भी वेब पेज हो, उसका फॉन्ट साइज, कलर एंड डिजाइनिंग स्कीम ये सेम होना चाहिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देन नेविगेशन प्रॉपर होना चाहिए, विजुअल इफेक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, कोई भी कंटेंट के लुक एंड फील शुड बी वेरी गुड। एंड यू शुड अंडरस्टैंड लाइक हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या हर एक ब्राउजर के लिए आपकी बनाई हुई वेबसाइट कॉम्पेटेबल होनी चाहिए। यहाँ पे अभी हमारा जो जूम है ये कभी भी बंद हो जाएगा। अगेन यू हैव टू ज्वाइन, रीजॉइन इट, बिकॉज सेकेंड द नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल्सो कंटिन्यूड बाय मी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगेन आपको इसको ज्वाइन करना है, एंड देन आई विल शेयर द अटेंडेंस लिंक इन द सेकेंड लेक्चर। दोनों लेक्चर का सेम अटेंडेंस हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। सो फर्स्ट लेक्चर का तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, सेकेंड लेक्चर के लिए अटेंडेंस लिंक जो रहेगा वो हम वी विल गिव। सो जैसे ये बंद होता है जूम, जस्ट ज्वाइन दिस। So this is a very first point we have completed from unit 1, जिसमें हमने basic introduction of web technology, internet, www, what is a website, planning and design issues, ये हम लोगों ने complete किया। This is a theoretical part only. Now in the next lecture we will actually start with a HTML and it's all the tags, and we will start running and how to like write down the code and how to run this। हर एक चीज हम with example देखेंगे। तो जैसे lecture खत्म होगा, एवरी टाइम यू हैव टू, जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया, ट्राई टू रन दिस। मैं उसको बेसिक सिंपल भी बताऊंगी। अगर आपके पास लाइक नोटपैड या मोबाइल यूजर है तो भी आप कैसे इसको रन कर सकते हैं बहुत इजी वे में, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अप टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट। डू यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स?